Greetings to all. This is our next topic, which is on the groundwater exploration and site investigation. So let's start with the today's topic, that is groundwater exploration, which include the site investigations. So first of all, if you want to do the groundwater exploration, so we have so many different methods or techniques which include the site investigation, and there are so many different techniques and process by which we can get the groundwater with the help of these techniques. So there are methods of site investigation, and the method of site investigation is divided into two main group. The first is surface method and the second is subsurface method. So we will see the surface method first. So the first surface method, which includes two major group, that is remote sensing technique, and the second is geological technique. And again, remote sensing technique is divided, or with the help of remote sensing technique we can go through the remote sensing, satellite remote sensing or aerial photographs. Or if we're talking about the geological technique, so we can identify the groundwater exploration, and we can investigate with the help of detailed geological survey or the preliminary geological survey. सो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं जहाँ पे हमें साइट इन्वेस्टिगेशन करना होता है. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन की. मतलब हमें विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स हमें ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर करना है, आइडेंटिफाई करना है, सर्च करना है. सो देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड बाय विच वी कैन गेट दी ग्राउंड वाटर. सो यहाँ पे साइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दो मेन ग्रुप है. पहला है सरफेस मेथड और दूसरा है सब सरफेस मेथड. सरफेस मेथड वो मेथड है जो हम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स हम पर्टिकुलर एरिया की आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. सरफेस मेथड में दो मेन ग्रुप है जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहला है रिमोट सेंसिंग टेक्निक और दूसरा है जियोलॉजिकल टेक्निक. रिमोट सेंसिंग टेक्निक अगेन दो इसमें डिवाइड हुई है, या फिर विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक हम दो इंफॉर्मेशन के थ्रू हमारी डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. पहला है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग एंड सेकेंड है एरियल फोटोग्राफ्स. Now, if you're talking about the geological technique, so geological technique again divided into two group, that is preliminary geological survey or detailed geological survey. So this is all about the surface method. So इस लेक्चर को हम पार्ट 1 में लेंगे, और जो पार्ट टू है हमारा सब सरफेस मेथड, वी विल डिस्कस द पार्ट 2 इन दी नेक्स्ट लेक्चर. सो लेट्स सी द पार्ट 1, दैट इज सरफेस मेथड, जहाँ पे हमें दो ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, रिमोट सेंसिंग टेक्निक और जियोलॉजिकल टेक्निक. सो हम टोटली डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ वी कैन कलेक्ट द ग्राउंड वाटर और हाउ वी एक्सप्लोर द ग्राउंड वाटर. सो हमारे साइट इन्वेस्टिगेशन दो ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, सरफेस मेथड और सब सरफेस मेथड. सब सरफेस मेथड में हमारे दो मेन पार्ट आ जाते हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में स्टडी करेंगे. Now we will discuss the surface method. So let's see what is surface method and how these techniques help to identify the groundwater exploration. So in the surface method we have the first technique, that is remote sensing technique. So before going to understand the remote sensing technique, we have to understand what is remote sensing. So रिमोट सेंसिंग टेक्निक हमारे सरफेस मेथड की पहली टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो रिमोट सेंसिंग क्या है, हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो रिमोट सेंसिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है, और वी कैन डिफाइन इन दिस वे द टेक्निक विच इज़ यूज्ड बाय द सैटेलाइट, और दिस टेक्निक आर give the information about particular area without going to any field or without any physical contact. So remote sensing is a technique
by which we can get the information without any physical contact or without going to any field or area. So this is called the remote sensing. मतलब रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हमें कोई भी एरिया, कोई भी लोकेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है जहाँ पे हम फिज़िकली नहीं जा सकते या फिज़िकली विदाउट गोइंग टू एनी फिज़िकल कांटेक्ट विद दैट पर्टिकुलर एरिया। और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी के थ्रू। या तो हम सैटेलाइट इमेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या फिर एरियल फोटोग्राफ के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमोट सेंसिंग में दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है जिसकी वजह से हम ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर हमें उस एरिया की पर्टिकुलर डिटेल्स स्टडी करने में हेल्प करते हैं सैटेलाइट इमेज और एरियल फोटोग्राफ्स। सो बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग है इज़ टोटली डीलिंग विद दी टेक्निक्स जहाँ पे सैटेलाइट्स का होना, एयरक्राफ्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जहाँ पे सेंसर का होना ज़रूरी होता है। मतलब रिमोट सेंसिंग में प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी होता है, सैटेलाइट का होना ज़रूरी होता है, एयरक्राफ्ट का होना ज़रूरी होता है और सेंसर का होना ज़रूरी होता है। सो ये चार जो ऑब्जेक्ट्स मिलकर हमारा जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक है इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दीज surface or these objects. So all these objects are used in the remote sensing techniques. So first in the remote sensing we will see the aerial photographs. Now what is aerial photographs? So basically aerial photographs are those photographs which is captured by the aircrafts, and satellite photographs or satellite image are those photographs which is captured by the satellite. So there is difference between the satellite photograph and aerial photograph. So aerial photograph वो photographs होती है जहाँ पे जो इमेज हमें मिलती है, जो प्रोडक्ट्स हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इमेज और डेटा, वो हमें एयरक्राफ्ट्स के थ्रू मिलता है। और अगर सैटेलाइट फ़ोटोग्राफ की बात करें तो जो सैटेलाइट फ़ोटोग्राफ होती है वो हमें मिलती है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। सो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, प्लेटफॉर्म इन द सेंस वो ऑब्जेक्ट जहाँ जो एरिया के ऊपर होता है, डायरेक्टली वर्टिकल अबो होता है और वो उस पर्टिकुलर एरिया की इमेज को कैप्चर करता है, उसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म। और उस प्लेटफॉर्म पे हमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट बोलते हैं। तो अगर एरियल फोटोग्राफ की बात करें तो एरियल फोटोग्राफ हमें एयरक्राफ्ट के थ्रू मिलती है। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड एयरक्राफ्ट, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन दी नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा सेकेंड पार्ट है। तो अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड एयरक्राफ्ट, तो आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सो जो एयरक्राफ्ट होता है वो एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ होता है एरियल फोटोग्राफ में, और जो पिक्चर एयरक्राफ्ट के थ्रू कैप्चर होती है उसे हम बोलते हैं एरियल फोटोग्राफ्स। और एरियल फोटोग्राफ की खासियत ये होती है कि वो ब्लैक एंड वाइट होती है। जैसे इस इमेज में देख सकते हैं ये ब्लैक एंड वाइट एरियल फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर हमारे पास इमेज है या कोई भी फ़ोटोग्राफ है, बट हमें उसको अंडरस्टैंड करते आना चाहिए, उसे एग्ज़ामिन करते हुए आना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हमें नहीं पता है कि ये ब्लैक पोर्शन क्या है या ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ये क्या है, तो हम उस पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से एग्ज़ामिन नहीं कर सकते। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा उस पर्टिकुलर फ़ोटोग्राफ को स्टडी करना, उस पर्टिकुलर फ़ोटोग्राफ को रीड करना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर हमारे पास हाफ़ नॉलेज होगा तो हम उस एरिया को अच्छे से एग्ज़ामिन नहीं कर सकते। सो इन केस एरियल फोटोग्राफ यहाँ पे हमको मोस्ट ऑफ दी पार्ट ब्लैक एंड वाइट में देखने के लिए मिलता है, मोस्ट ऑफ दी क्या, या फिर हमें पूरा ही जो फ़ोटोग्राफ है वो ब्लैक एंड वाइट शेड में होता है, जहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस कलर का शो कर रहा है, या तो वो डार्क कलर शो करेगा या डार्क ब्लैक शो करेगा या लाइट ग्रे या फिर कम्प्लीटली वाइट। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कि जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म यूज्ड होता है वो एयरक्राफ्ट होता है, और विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फोटोग्राफिक रिमोट सेंसिंग, एंड इट इज़ द डेटा प्रोडक्ट विच आर इन ब्लैक और वाइट कलर। सो जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये एक पर्टिकुलर एरिया की एरियल फोटोग्राफ है जो वाइट और ब्लैक कलर की है। It consists of taking photographs at regular time interval from an air,
flying along a definite line at a certain height above the mean sea level. So ये रेगुलर टाइम पीरियड में कैप्चर होता है, मतलब जो एयरक्राफ्ट होती है उसमें टाइम डिवाइडेड होता है, टाइम दिया हुआ होता है, और जब जब वो उस लाइन से सरफेस पे मूव करेगी, उस टाइम पीरियड पे उस एरिया के ऊपर आने के बाद जैसे ही वो ऊपर आएगी उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे उसका टाइम फिक्स है कि हर 15 मिनट्स में आपको, या जितना उसका सर्कल कंप्लीट होता है, फॉर एग्जांपल अगर उसका सर्कल आधे घंटे में कंप्लीट होता है तो वो हर आधे घंटे में उस पर्टिकुलर एरिया की फ़ोटो कैप्चर करेगी. सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन दी ऑन दी टाइम. सो जो रेगुलर टाइम होता है टाइम इंटरवल पे वो डिपेंड करती है फ्रॉम एन एयर फ्लाइंग अलोंग अ डिफाइनाइट लाइन. जो उसका लाइन होता है या उसका सर्कल या हम पाथ भी बोल सकते हैं, उस पाथ पे वो कंटिन्यू मूव करते रहता है और एक रेगुलर टाइम पीरियड और टाइम इंटरवल पे वो इमेज कैप्चर करता है और एक सर्टन हाइट पे होता है. और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट का डिफरेंस पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप पे नहीं पता है तो आप वो भी बताइए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट. सो आई विल एक्सप्लेन दीज इन दी नेक्स्ट लेक्चर. सो यहाँ पे जो हाइट का इशू है वो आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में. अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो जो एयरक्राफ्ट है और सर्टेन हाइट पे होता है अबू दी मीन सी लेवल मतलब जो हमारा अर्थ सरफेस है उसके पर्टिकुलर एक हाइट पर हमारा एयरक्राफ्ट होता है, जहाँ से हमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है इन दी फॉर्म ऑफ एरियल फोटोग्राफ मिलती है. तो जो एयरक्राफ्ट होता है वो सेंसर से कनेक्टेड होता है. वो जैसे ही फ़ोटो क्लिक करता है और वो सेंसर के थ्रू कैप्चर हो जाती है, और विद दी हेल्प ऑफ सेंसर हमें ऑन दी अर्थ सरफेस विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम हम उस फ़ोटो को ईज़िली क्लेम कर सकते हैं. सो इन दिस वे जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक है वो काम करती है. अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे थे, हम साइट इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे कि ये जो टेक्निक है वो कैसे यूज़ होती है. सो जैसे कि मैंने बताया कि जो रिमोट सेंसिंग है वो विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट और विदाउट गोइंग टू एनी फील्ड और पर्टिकुलर एरिया हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इमेज होती है जो कि एक हाइट से ली हुई होती है, और जो जितना हमें ये इमेज दिख रही है या जो फोटोग्राफ दिख रही है ये जितना एरिया कवर करती है, यहाँ पे सर्वे करना या यहाँ पे फिज़िकली जाना इट्स वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि हम हर कोने में हर पार्ट में जाके सर्वे नहीं कर सकते. सो विद दी हेल्प ऑफ एरियल फोटोग्राफ हम इस पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से एग्जामिन करते हैं और हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. और जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास एरियल फोटोग्राफ है बट हमें उसे रीड करना ही नहीं आ रहा है तो इट इज़ अ हाफ नॉलेज, और हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस. सो जब तक कि हमें उस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को रीड करना नहीं आएगा तो हम उस एरिया या उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड और टू अंडरस्टैंड दी एरियल फोटोग्राफ. सो बेसिकली यहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट में आपको दिख रहा है ये एरियल फोटोग्राफ है, और ये जो ब्लैक पार्ट है ये वेजिटेशन को शो करता है. ठीक है, तो ये जो ब्लैक पार्ट है ये हमारा पूरा वेजिटेशन है. और यहाँ पे जो आप देख रहे हो इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे हमको अर्बन एरियाज़ को इंडिकेट करता है. ये वाला जो पार्ट है ये पूरा अर्बन एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, और ये पूरे अर्बन एरियाज़ है जहाँ पे आपको बिल्डिंग्स देखने के लिए मिल सकती है या बहुत सारी ऑर्नामेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं. और ये जो पार्ट है ये हमें वेजिटेशन वाला पार्ट शो कर सकता है, यहाँ पे क्रॉपिंग हो सकती है. तो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कि जिसकी वजह से हम उनके अपीयरेंस की वजह से हम उसको जज कर सकते हैं एंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो इन दिस वे जो एरियल फोटोग्राफ होती है, जब भी हमें कुछ ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन करना है तो हम विद दी हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे हमारा वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन है वहाँ पे ज़्यादा हमें वाटर की कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगी. या फिर हम विद द हेल्प ऑफ एरियल फोटोग्राफ हम जो हमारा स्ट्रीम का फ्लो होता है, जो हमारी स्ट्रीम ट्यूटरीज होती है, मतलब जो हमारी स्ट्रीम होती है वो किस किस वे में या किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, हम ये भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरियल फोटोग्राफ. सो ये जो टेक्निक्स है हमारी ये आती है हमारी सरफेस मेथड में, जहाँ पे हम विदाउट गोइंग टू एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं.
सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, और अभी के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ में है और बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू दी अदर टेक्निक्स। बिकॉज पहले टाइम में ऐसा होता था कि हमें बहुत महीने लग जाते थे, घंटों बीत जाते थे उस पर्टिकुलर एरिया को एग्जामिन करने के लिए। So in this way, aerial photographs is used to identify or to explore the groundwater exploration, or by which we can get the information about that particular area without any physical contact. So this is all about the aerial photograph. Now we will see the satellite photograph. So satellite remote sensing or satellite photograph. So where the satellite is used as a platform and the image is captured by the satellite, this is known as the satellite photograph or satellite image. So जैसे कि मैंने बताया है कि अगर एयरक्राफ्ट के थ्रू वॉट इमेज कैप्चर होती है तो उसे हम एरियल फोटोग्राफ्स बोलते हैं, और अगर सैटेलाइट के थ्रू फोटोग्राफ कैप्चर होती है तो उसे हम सैटेलाइट फोटोग्राफ या सैटेलाइट इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, सो जो डेटा हमें कलेक्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ, सैटेलाइट फोटोग्राफ, और प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमारा जो है सैटेलाइट। सो जैसे कि मैंने बताया है कि सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ सेंसर फ़ोटो कैप्चर करता है, देन अगेन वो ग्राउंड स्टेशन पे सेंड होती है, एंड देन हमें इन द डिजिटल फॉर्म और डिजिटल मैनर में हमें कंप्यूटर वेज में, कंप्यूटर फॉर्म में दिखता है। सो इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द डिजिटल वर्क। सो यहाँ पे हमें जो डेटा मिल रहा है वो कुछ इस टाइप की सैटेलाइट इमेज हमें देखने के लिए मिलती है। सो ये हमारी सैटेलाइट इमेज है, और अगेन जैसा कि मैंने बताया कि विदाउट एनी नॉलेज अबाउट हाउ टू रीड दी सैटेलाइट इमेज और एरियल फोटोग्राफ हम कोई भी पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से एग्जामिन नहीं कर सकते। तो इसके पहले हमने एरियल फोटोग्राफ देखा है जहाँ पे हमने जो ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं, तो जो ब्लैक पार्ट है वो मोस्टली ब्लैक पार्ट हमें वेजिटेशन शो करता है। यहाँ पे जो इमेज है ये कुछ इस तरीके की होती है सैटेलाइट इमेज, और ये जो इसे भी रीड करते आना चाहिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है ये पूरा अर्बनाइज्ड एरिया है, जहाँ पे हमें लोकेलिटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेलिटीज़ देखने के लिए मिल सकती है। पूरा अर्बन एरिया है जहाँ पे हमें घर, बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ देखने के लिए मिल सकती हैं। और ये जो डार्क कलर का जो पैच हमें दिख रहा है ये है हमारी वाटर बॉडी। सो ये वाटर बॉडी है जो कि डार्क ब्लैक कलर की हमें दिख रही है, या ब्राउन भी बोल सकते हैं, डार्क ब्राउन। तो ये जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा वाटर बॉडी है, ये भी एक वाटर बॉडी है। दिस इज़ ऑल्सो अ वाटर बॉडी। सो सैटेलाइट इमेज और एरियल फोटोग्राफ की एक एडवांटेज ये होती है कि हम कम वक्त में, कम टाइम में बहुत सारे एरिया को एग्जिस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेजेस और फोटोग्राफ्स। तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जो रिवर है, रिवर का स्ट्रीम फ्लो क्या है, कितनी ट्रिब्यूटरीज है, उसका फ्लो डायरेक्शन क्या है। तो इजीली हम ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट इमेज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाउंड्रीज, रोडवेज, कैनाल्स, ये सारी चीज़ हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन से एरिया में वेजिटेशन ज़्यादा है, कौन से एरिया में वेजिटेशन कम है। तो जो हमारी सैटेलाइट इमेज होती है वो सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, यहाँ पे हमें बहुत सारी टाइप की सैटेलाइट इमेज देखने के लिए मिलती है। तो जो सैटेलाइट इमेज होती है, जो डेटा प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं। फॉल्स कलर कंपोजाइट जो FCC जो हम बोलते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉल्स कलर कंपोजाइट एक ऐसी इमेज होती है, जैसे हमें ब्लैक एंड वाइट इमेज अगर सैटेलाइट से मिलती है तो हम उसको FCC में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स कलर कंपोजाइट। वो FCC उस वाइट एंड ब्लैक इमेज को कलर दे देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें वाइट एंड ब्लैक में जो ब्लैक शेड है वो वेजिटेशन शो करता है, तो वही जो FCC में अगर हम उस इमेज को ट्रांसफ़र करके रीड करेंगे तो वो जो ब्लैक वाइट है, ब्लैक कलर होता है वेजिटेशन का, वो हमें रेड कलर में शो करता है। तो इन दिस वे हमारे पास जो भी मोनूमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट की बात करें तो कुछ लाइट और डार्क शेड में होते हैं।
तो वही अगर हम उसको एफसीसी में ट्रांसफ़र करते हैं या एफसीसी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स होते हैं जहाँ पे हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है वेजिटेशन का। तो वेजिटेशन जो एरियल फोटोग्राफ में ब्लैक कलर का दिखता है, वही अगर हम एफसीसी में उसे देखेंगे तो वो रेड इन कलर शो करेगा। तो इस टोटली डिपेंड ऑन दी एफसीसी के हमें कौन सा कलर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर है, अलग अलग मोनूमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर है। जैसे जो वेजिटेशन होता है वो हमें रेड कलर का देखने के लिए मिलता है। और अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो वाटर बॉडी जो है वो एफसीसी में या तो हमें डार्क ब्लू दिखेगी या नेवी ब्लू दिखेगी या ब्लैक दिख सकती है। डिपेंड करता है कि वो वाटर बॉडी कितनी डीप है, कितनी शैलो है। अगर ज़्यादा डीप वाटर बॉडी होगी तो वो हमें डार्क कलर में दिखेगी, और अगर शैलो वाटर बॉडी होगी तो वो हमें लाइट इन कलर दिखेगी। सो इस तरीके से बहुत सारे लिस्ट है जहाँ पे हमें एफसीसी के जो कलर है वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। जैसे अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, और अर्बन एरियाज़ जो होते हैं वो एफसीसी इमेज में सियान कलर के दिखते हैं, कुछ लाइट स्काई ब्लू कलर के दिखते हैं, जिसे हम सियान कलर बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम एफसीसी में जिसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये भी एक सैटेलाइट इमेज होती है एफसीसी में ट्रांसफ़र करने के बाद। उसके बाद होती है कंप्यूटर कंपैटिबल टेप्स। ये भी एक इमेज है, जैसे अगर वाइट एंड ब्लैक इमेज है तो हम इसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड उसके बाद होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सो डिपेंडिंग ऑन आर वर्क, डिफरेंट टाइप के जो जितने भी डिफरेंट टाइप के वर्क्स होते हैं, तो हमारे वर्क पर डिपेंड करता है कि हम जिस टाइप का वर्क करते हैं उस टाइप के हिसाब से हम इमेज को ट्रांसफ़र करते हैं। सो हमें किस टाइप का चाहिए या किस टाइप की हमें नीड है, सो डिपेंडिंग ऑन आर नीड और डिपेंडिंग ऑन आर वर्क we have to convert the aerial photographs in the FCC or CCF or CDs. So there are so many different ways कि हम एरियल रिमोट सेंसिंग टेक्निक को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक नाउ इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी sufficient. With the help of these we can do so many work without any physical contact or without any wasting of our times. So this is a very important टॉपिक। और इस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और वाइवा में भी आपसे पूछ सकता है कि हाउ रिमोट सेंसिंग आर यूज्ड नाउ डेज एंड व्हाई इट इज़ एसेंशियल फॉर दी मॉडर्न टाइम्स। सो दिस इज़ वेरी कॉमन कि अभी का टाइम जो है पूरा डिजिटल्स हो चुका है, डिजिटाइज हो चुका है मैक्सिमम चीज़ें। तो अब टाइम में हमें रिमोट सेंसिंग का यूज़ पता होना चाहिए, रिमोट सेंसिंग टेक्निक क्या है पता होना चाहिए। सो भी जो जितने भी हमारे जो सेक्टर्स है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, वो सारे धीरे धीरे रिमोट सेंसिंग के तरफ टूवर्ड्स रिमोट सेंसिंग जा रहे हैं। बिकॉज ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हमें टाइम कम लगता है, हमारी मेहनत भी कम लगती है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, हमें इजीली टाइम टू टाइम डेटा मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स रिमोट सेंसिंग and with the help of satellites and aircraft. So this is a very basic and unique techniques to identify the groundwater exploration or groundwater. Now we will see the next. So this is the next example of the satellite image where we can see this is the white and black image। और अगर हम इसको FCC में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप की इमेज देखने के लिए मिलेगी। सो दिस इज़ द FCC इमेज एंड दिस इज़ द रियल सैटेलाइट इमेज। सो जैसा कि मैंने बताया है कि जो हमारा ब्लैक वाला पोर्शन होता है, जो कि वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट में हमें वाइट ब्लैक कलर का शो करता है वेजिटेशन पार्ट। अगर हम उस वेजिटेशन पार्ट को FCC में कन्वर्ट करें तो वो हमें कुछ रेड कलर का दिखेगा। मतलब ये एक स्टैंडर्ड कलर है कि अगर कोई भी वेजिटेशन पार्ट है और हम उसको FCC में कन्वर्ट कर रहे हैं उस इमेज को, तो वो रेड कलर का ही शो करेगा। ठीक है। सो ये जो हमारा पार्ट है जो रेड कलर शो कर रहा है, इट इज़ टोटली अ वेजिटेशन पार्ट। तो जहाँ जहाँ आपको रेड कलर दिख रहा है मतलब यहाँ पे हमको वेजिटेशन या हमें ग्रीनरी मिलती है सरफेस के ऊपर। सो ये वाला जो पार्ट है हमारा पूरा ये वेजिटेशन पार्ट है। ठीक है। और अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो ये सियान कलर है जहाँ पे हमें मैक्सिमम चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अर्बनाइज्ड एरिया इंक्लूड कर सकते हैं या वाटर बॉडी, या फिर हम कोई जो लैंड होती है, जो बैरन लैंड होती है, उसे भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। इस इमेज की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस इज सैटेलाइट मैप ऑफ 2010
एंड दिस इज सैटेलाइट मैप ऑफ 2001। सो यहाँ पे हम ये डिफरेंस देख सकते हैं कि 2001 में यहाँ का जो पोर्शन था, ये हमारा जो है ये स्ट्रीम फ्लो डायरेक्शन है, ये स्ट्रीम का फ्लो दिखाता है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हमें बहुत सारी जो चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो ये हमारा अर्बनाइज्ड एरिया बोल सकते हैं, या यहाँ पे कुछ बैरन लैंड बोल सकते हैं। और अगर जब ये 2001 की इमेज है और अगर 2010 में हम देखें तो आप देख सकते हो कि इन 10 साल में कितना चेंज आया है। तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेज हम कोई भी एरिया को इजीली एग्जामिन कर सकते हैं कि उस एरिया में कहाँ पे कितना वेजिटेशन हुआ है, कहाँ पे कितना अर्बनाइजेशन हुआ है, स्ट्रीम का फ्लो कितना चेंज हुआ है विद द टाइम। सो अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारी स्ट्रीम फ्लो है, और अगर यहाँ देखें तो दिस इज़ थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ के स्ट्रीम फ्लो में। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं दो सैटेलाइट इमेज को विथ, जिसमें शर्त ये है कि उसमें ड्यूरेशन ऑफ गैप होनी चाहिए। जैसे ये 2001 की इमेज है तो ये 2010 की इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में ज़्यादा वेजिटेशन हुआ है, किस पार्ट में अर्बनाइजेशन हुआ है, कहाँ पे हमें बैरन लैंड देखने के लिए मिलती है। So this is totally depend on the duration or time gap between the कैप्चर्ड इमेज। सो हम यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जितनी भी जो रेड इमेज आपको दिख रही है ये सारी एफसीसी की इमेज है, मतलब फॉल्स कलर कंपोजाइट। सो जो ये फॉल्स कलर कंपोजाइट इमेज होती है ये ब्लैक एंड वाइट होती है, जिससे हम ट्रांसफ़र करते हैं एफसीसी में, और विद द हेल्प ऑफ एफसीसी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन से मोनूमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, वेजिटेशन है, ग्रीन लैंड है, या फिर वाटर बॉडीज़ को। देर आर सो वास्ट एडवांटेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग कि हम बता भी नहीं सकते हम कितनी हेल्प ले सकते हैं रिमोट सेंसिंग से। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, एंड मॉडर्न टाइम में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल डिपेंड ऑन आवर सैटेलाइट्स, सेंसर एंड प्लेटफॉर्म। सो दिस इज़ द एफसीसी इमेज। नाउ नेक्स्ट इज़ जियोलॉजिकल टेक्निक्स। सो जैसे कि मैंने बताया जियोलॉजिकल टेक्निक्स, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना है प्रीलिमिनरी जियोलॉजिकल टेक्निक्स और डिटेल जियोलॉजिकल टेक्निक्स। सो प्रीलिमिनरी जियोलॉजिकल टेक्निक्स में सबसे पहले आता है, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर के जियोलॉजिकल मैप के थ्रू हम विदाउट गोइंग टू एनी फील्ड हम सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल मैप उस एरिया की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख सकते हैं, डायरेक्शंस देख सकते हैं, टोपोग्राफिक फीचर्स, जियोमॉर्फिक फीचर्स, सारी चीज़ देख सकते हैं। अगर हम फील्ड पे जाने से पहले हमारे पास उस पर्टिकुलर एरिया का जियोलॉजिकल मैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विद द हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल मैप हम रोडवेज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैनाल्स को, स्ट्रीम फ्लो को, ड्रेनेज सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो विद दी हमें जियोलॉजिकल मैप की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकती है। हमें उस एरिया का नक्शा होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस फील्ड पे जाने से पहले हमारी पहले की जो प्रिपरेशन है, जो थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन है, हम ये सारे छोटी छोटी चीज़ों से, ऑब्जेक्ट से गैदर कर सके फॉर हमारे बेनिफिशियल के लिए। सो जो प्रीलिमिनरी जियोलॉजिकल सर्वे होती है वो उसमें आता है हमारा जियोलॉजिकल मैप, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी फील्ड वर्क से पहले। ठीक है, सेकेंड है हमारा आउटक्रॉप्स। आउटक्रॉप की बात करें तो आउटक्रॉप में हमारे रॉक टाइप्स आ सकते हैं, उस एरिया की लिथोलॉजी आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि एरियल फोटोग्राफ्स की बात करें या सैटेलाइट फोटोग्राफ की बात करें या फिर जियोलॉजिकल मैप की बात करें, तो हम विद दी हेल्प ऑफ दीज मैप्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एरिया में किस टाइप के रॉक हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, वहाँ के लैंड फॉर्म्स कैसे हैं, वहाँ पे किस टाइप का लिथोलॉजी है, कौन कौन से रॉक टाइप है, उनका मोनूमेंट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ दीज मैप हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमें पता है आउटक्रॉप्स क्या है। आउटक्रॉप्स मतलब ऐसे लैंडफॉर्म्स जो अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं, जो रॉक टाइप से बने हुए होते हैं, उसे हम आउटक्रॉप्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा रॉक टाइप। सो रॉक टाइप में वो सारी चीज़ें आ सकती है जो आउटक्रॉप में आती हैं, तो रॉक टाइप का इंफॉर्मेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जियोलॉजिकल मैप, आउटक्रॉप्स, रॉक टाइप्स, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी प्रीलिमिनरी जियोलॉजिकल सर्वे में आती है। मतलब जब जाने से पहले जो हमें क्या क्या वर्क करना है, कौन कौन से वर्क डन करने हैं, वो सारी चीज़ें इन प्रीलिमिनरी जियोलॉजिकल सर्वे में आती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट गोइंग टू
before going to field work. So this is the example of outcrops. This is our outcrop, and this is the geological map. So that's it. We have seen the surface method in this lecture. सो हमने सरफेस मेथड देखा है. सब सरफेस मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो सरफेस मेथड में हमने सो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स देखी है. पहली है रिमोट सेंसिंग टेक्निक और दूसरी है जियोलॉजिकल सर्वे और जियोलॉजिकल टेक्निक. रिमोट सेंसिंग टेक्निक की हम हेल्प लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एरियल फोटोग्राफ और सैटेलाइट इमेज. हम रिमोट सेंसिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दीज फोटोग्राफ्स वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया विदाउट गोइंग टू एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट और विदाउट गोइंग टू एनी फील्ड वर्क. सो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. और जियोलॉजिकल टेक्निक की बात करें और जियोलॉजिकल सर्वे की बात करें तो उसमें दो आता है. सबसे पहला है प्रिलिमिनरी जियोलॉजिकल सर्वे, जहाँ पे हमें बिफोर गोइंग टू फील्ड हमें अपने ही खुद का एक अनुमान लगाना होता है या एक इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है उस एरिया में जाने से पहले, एग्जिट करने से पहले, कि वहाँ का मैप कैसा है, वहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, रॉक कौन से टाइप की है, लिथोलॉजी कैसी है. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम विद दी हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल मैप लेते हैं, विद दी हेल्प ऑफ आउटक्रॉप लेते हैं, रॉक टाइप देखते हैं, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, रीजन क्या है. ये सारी चीज़ें हम विद दी हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं और डिटरमाइन करते हैं. और जो लास्ट आता है हमारा डिटेल जियोलॉजिकल सर्वे. तो जो डिटेल जियोलॉजिकल सर्वे है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि डिटेल जियोलॉजिकल फील्ड मैपिंग में क्या आता है. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस लेक्चर बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, वाइवा में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट बिकॉज ये बेसिक चीज़ है और ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. फील्ड वर्क चाहे जियोलॉजिस्ट का हो या इंजीनियर का हो, सारे ही फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और सारे फील्ड वर्क में ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर. और आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और आप मुझे बताइए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड एयरक्राफ्ट. अगर आपको नहीं पता है तो वो भी बताइए, और अगर आपको पता है तो आप वो भी बताइए. ठीक है. और अगर आपको नहीं पता है तो आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन दी नेक्स्ट लेक्चर. सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.